हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से नीट 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 6.25%, 20%, 26.8% एंड 12%। जो हीट इंजन का अगर हम लाइन डायग्राम ड्रॉ करें, this is source at higher temperature, this is working substance, work is delivered to appliances and balance heat is transferred to sink at lower temperature. This is sink, ये Q1 Q2, Q1 is equal to W plus Q2. Temperature of the source T1, 100 degree, boiling point is 100 degree centigrade, 100 plus 273 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 373 केल्विन। T2 टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 में 273 ऐड कर दिया, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया 273। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ईटा इज W by Q1 into 100, W from equation Q1 is equal to W plus Q2 और W is equal to Q1 minus Q2। पुट कर दिया Q1 minus Q2 by Q1 into 100, Q1 minus Q2 by Q1 इतने परसेंट। दिस Q1 और Q2 की जो रेशियो है वो T2 एंड T2 रेशियो T1 के इक्वलेंट होगी, तो 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100 या T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। वैल्यू पुट कर दी, T1 है 373 और T2 है 273 बाई 373 इंटू 100 परसेंट, तो 100 इंटू 100 बाई 373 परसेंट। इसको अगर डिवाइड कर दें, थ्री 73 टू 038, दिस कम्स 26.8%। जो एफिशिएंसी होगी वो 26.8% होगी। दिस C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस वेराइज विद इट्स टेम्परेचर T as shown in the figure. The ratio of work done by the heat absorbed by it when it undergoes from A to B is. ये फिगर दी है, हम फिगर यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज A and B
और V एंड P। सपोज यहाँ पे प्रेशर PA, वॉल्यूम VA, टेम्परेचर TA। Here PB, VB and TB, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट B। तो जो ग्राफ से हम देख रहे हैं कि जो VA बाई TA इज इक्वल टू VB बाई TB, और गैस इक्वेशन एट A, PA VA इज इक्वल टू R nRTA। अगर n मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, नंबर ऑफ मोल्स n nRTA। At B, PB VB nRTB। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को 2 से, तो PA अपॉन PB इंटू VA अपॉन VB इज इक्वल टू TA बाई TB, और PA अपॉन PB TA TB इंटू VB बाई VA। जो VA अपॉन TA, या इस तरह से लिख VB बाई TB इंटू VA बाई TA। This VA by TA is equal to VB by TB, hence this is 1। तो PA is equal to PB इक्वल होंगे, दिस एज्यूम करो, एज्यूम किया कि दिस इज PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम VA by TA is equal to VB by TB, TB by TA is equal to VB by VA। VB is greater than VA, hence it is greater than 1। तो TB is greater than TA। It means internal heat energy is increasing. Energy is increasing. Work done by the system W, delta W is P dV from VA to VB, और PV VA VB, और P VB minus VA, और this comes PVB minus PVA। This is nRTB,
NRTB minus NRTA as per gas equation. NRTB minus TA, अगर TB माइनस TA को हम डेल्टा T से डिनोट करें तो दिस कम्स NR डेल्टा T, डेल्टा W, then change in increase in internal energy, delta U is equal to NCV delta T. CV is coefficient of specific coefficient of gas at constant volume. मोनो एटॉमिक गैस है तो CV की वैल्यू होती है 3/2 R इंटू डेल्टा T, 3/2 NR डेल्टा T, ये डेल्टा U की वैल्यू आ गई फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, first law of thermodynamics, energy supplied is equal to delta U plus delta W, 3/2 N R delta T plus NR delta T, this comes 5/2 NR delta T. तो रेशो रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड रेशो है वो है डेल्टा W बाई डेल्टा Q, NR डेल्टा T बाई 5/2 NR डेल्टा T, NR डेल्टा T से NR डेल्टा T क्रॉस हो गया 5/2 और 2/5, जो रेशो रिक्वायर्ड है दैट विल बी 2/5. This C is the correct option. Next question. A sample of 1 gram of water at 100 degree centigrade and normal pressure 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square requires 54 calorie of heat energy to convert into heat at 100 degree centigrade. If the volume of the steam produced is 167.1 cc, the change in internal energy of the sample is. इनिशियली जो 0.1 ग्राम वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 of 0.1 gram water, (1000 gram) is equal to 1 liter of water या 1000 cc. 1 gram is equal to 1 cc, 0.1 gram is equal to 0.1 cc. तो इनिशियल वॉल्यूम था दैट वाज 0.1 cc एंड फाइनल वॉल्यूम है 167 cc. तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V is 167.1 minus 0.1 is equal to 167 cc और 167 into 10 to the power minus 6 meter cube. Increase volume is increasing and
वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय सिस्टम डेल्टा W is equal to P into delta V. P is 1.013 into 10 to the power 5 and delta V is 167 10 to the power minus 6. 1.013 into 167 into 10 to the power minus 1 जूल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 167 से, ये आ जाता है 16.8171 जूल और अप्रोक्सीमेटली 16.82 जूल। अब एनर्जी सप्लाइड इज 54 कैलोरी, डेल्टा Q is 54 calorie, वन कैलोरी इज 4.18 जूल। इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर दें, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 54 ये आ जाता है 225.72 जूल। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो होती है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, देन डेल्टा U इज डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q है 225.72 माइनस 16.82, ये हो जाता है 208.90 जूल। तो एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज और इंक्रीज होगी वो 208.9 जूल। 208, this is nearest, hence answer is B.